अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, वेरी एंगेजिंग, वेरी मोटिवेटिंग। कम ऑन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Hey everyone, and welcome. Today, we're going to dive into a force that is, well, literally all around us. It powers our homes, our cities, and even the thoughts inside our own heads. We're going to break down what electricity really is, and you'll see it all starts with one simple idea: charge. So let's just start with the biggest, most basic question, right? What even is electricity? I mean, we use it every single moment of our lives, but do we ever stop to think about what's actually going on? The answer to this is the key that unlocks everything. At its heart, the definition is actually surprisingly simple. Electricity is a form of energy. Okay, easy enough. But here's the crucial part: it's energy that comes from these tiny, tiny things called charges. If you can get your head around what a charge is, you're pretty much all the way to understanding electricity. That's it. Seriously, it is all about the charges. Every single thing you can think of that's electrical, from a tiny static shock off a doorknob to a massive bolt of lightning tearing across the sky, it's all caused by these little guys. They're the main characters in this entire story. Now, you'd think something as powerful and complex as electricity would have, I don't know, dozens of different parts, right? But here's the amazing part: it all boils down to just two. The entire universe of electricity is built on only two fundamental types of charges. And here they are. Meet the two teams in this game. We've got the positive charge, which we show with a little plus sign, and we've got the negative charge, which gets a minus sign. Literally every single charge in the universe falls into one of these two camps. Okay, so we've got our two players on the field, positive and negative. The next big question is, what happens when they get near each other? What are the rules of the game? How do they actually behave? And this is the beautiful part: it's not complicated at all. All of their interactions, the whole shebang, are governed by just two super simple, unbreakable rules. Rule number one: like charges repel each other. And rule number two: opposite charges attract each other. Let's see what that actually looks like. So imagine you take one positive charge and you try to smush it up against another positive charge. Well, they're not going to have it. They will actively push each other away. They repel. It's kind of like when you try to push the two north poles of a magnet together, you can feel that force pushing them apart. Same idea here. And you guessed it, the exact same thing is true for our negative charges. If you put two of them close to each other, they're also going to push apart. So the key thing to remember is, when the charges are the same, positive and positive or negative and negative, they always, always repel. But what happens when you take one from each team? This is where things start to get really interesting. This is where the action really begins. This is where the magic happens. A positive charge and a negative charge don't push away from each other. No way. They do the exact opposite. They are drawn to one another. They attract. And that force of attraction, that pull, that's what gets charges moving. And that movement of charges, well, that's what we call an electric current. So let's just quickly wrap this up. If you remember nothing else, remember these two things. First, electricity is just energy, and it all comes from two types of charges: positive and negative. And second, these charges play by two simple rules. If they're alike, they push each other away, and if they're opposites, they pull towards each other. That's it. And this all leads us to one last really cool question. We've just learned that these positive and negative charges are the building blocks of literally everything around us. So if they're everywhere, why isn't everything constantly buzzing and sparking? What's the secret trigger that makes them suddenly decide to flow and create the power we use every day? Something to think about. Thanks for tuning in. Electricity is a fundamental form of energy. It is the force that powers our world from the smallest atom to the largest cities. बिजली हर जगह पे मौजूद होती है। ये हमारे छोटे से छोटे एटम से लेकर कायनात के बड़े बड़े निज़ामों तक और बड़े बड़े शहरों तक हर चीज़ बिजली से ही चलती है। हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक ख़ास बुनियादी किस्म है।
The energy is carried by fundamental particles called charges. बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है या कहीं पे भी होती है, असल में किस वजह से होती है? वो उन चार्जेस की वजह से होती है। जो भी चीज़ है जिसमें अंदर बिजली है, इसका मतलब है उसके अंदर चार्जेस हैं। चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिजली चार्जेस की वजह से होती है और चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। Positive and negative charges. Charges come in two distinct types, positive and negative. Charges दो बिल्कुल अलग अलग किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरी किस्म के नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। Electricity is a form of energy. It comes from positive and negative charges. ये दो बॉडीज हमारे सामने हैं, इस वक्त इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज आप देखें, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पे, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज जब इस पे आता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। हमने एटम में के बारे में पढ़ा है कि एटम में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। Electricity is a form of energy. It comes from charges. These can be positive and negative. पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो ही किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई चीज़ या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी या वो न्यूट्रल होगी, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। रूल्स, ये चार्जेस के बारे में रूल नंबर 1, पहला उसूल किया है, चार्जेस दैट आर द सेम पुश ईच अदर। इसे रूल ऑफ रिपल्शन कहते हैं। रिपल्शन मतलब एक दूसरे को परे धकेलते हैं। तो फर्स्ट रूल नंबर 1, चार्जेस दैट आर सेम or of same type, same kind, they push each other, they repel each other. This principle is called repulsion. It is a fundamental rule that like charges will always move to separate from one another. Like charges, same charges, they always repel each other. This rule is called rule of repulsion. These are two positive charges, they repel each other. वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं। टू नेगेटिव चार्जेस, वो भी सेम होते हैं, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस, रूल नंबर 2, दैट इज रूल ऑफ अट्रैक्शन। रूल ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फिर दो oppositely charged bodies हैं, unlike charges हैं, they attract each other. This is the second rule. First rule was the rule of repulsion and the second rule is rule of attraction. The second principle is called attraction. It is the force that draws opposite charges towards one another, creating a fundamental bond. दो opposite charges एक दूसरे को attract करते हैं और उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। A positive charge and a negative charge will always attract each other. एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट इच अदर। ये दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कंप्लीट रूल बुक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पूरा जो है अगर हम इन सब को मिलाएं, दो रूल्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट रूल इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड सेकंड रूल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और रूल नंबर 2 दैट इज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर।
पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यही दो रूल अमल करते हैं। पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, लेकिन अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम बात करते हैं ये चार्जेस जो है, हमने कहा इसके दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी भी, देयर इज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी दो किस्म की होती है। नंबर वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो दो हमारे पास बॉडीज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज अपनी जगह पे रुका हुआ है। जब चार्ज एट रेस्ट हो, जब चार्ज रुका हुआ हो, जब चार्ज फ्लो न कर रहा हो, तो ऐसे चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को जो स्टैटिक हो, एट रेस्ट हो, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नंबर टू, मूविंग चार्ज आर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर से, किसी बॉडी के अंदर से, तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, जब चार्जेस जो हैं उन्हें हम फ्लो करता हुआ जो चार्ज की जो कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमने पढ़ा है चार्जेस की वजह से बिजली होती है, और चार्जेस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और फिर आज हमने स्टडी किया है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने स्टडी किया है कि चार्जेस जो हैं वो अगर रुके हुए हों, किसी बॉडी के ऊपर हों, तो वो रुके हुए हों, एट रेस्ट हों, तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जब चार्जेस मूव कर रहे हों, तो उन्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की टाइप है, और ये असल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है। फिर हमने स्टडी किया कि सेम चार्जेस पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया। यानी दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो किसी बॉडी के ऊपर रुकी होती है, इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जिसे करंट कहते हैं, जो जब चार्जेस बहना शुरू करते हैं, जब चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं, तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। ये चैनल तालीम मंजिल सिर्फ और सिर्फ तालीम के फ़रोग़ के लिए है। ये मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है इसका मकसद, जिन तक अच्छी तालीम नहीं पहुंच रही। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसे लाइक भी कीजिए, ताकि इल्म का यह सफ़र जारी रहे। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।